about what is the last topic that we have discussed. I think the difference between statistical and the structural pattern recognition, right? Yes, sir. Today I'll check the answer. Yesterday, due to some reasons, I could not get time to check that, but today I'll check, right? So the responses, all the responses I'll go through. Okay. So these differences are clear to you. Now, now you know that what is structural pattern recognition and what is statistical pattern recognition. Okay. So from today, we'll start discussing data set. So you have already heard this data set many times, right? अभी तक मैंने बहुत बार डेटा सेट कहा है इस क्लास में कि हमने ये डेटा सेट लिया, we have considered this data set, right? So any idea that when we talk about data set, what is that exactly? Sir, collection of data. Collection of data, right? Anyone else? You know, data set divide into two words, data and set. Since in this lecture I am trying to start from the very fundamentals, from the very beginning, so I don't want to skip even a single terminal that we are going to face in this class. Okay, not just in this lecture, you will face these terms in data mining also, machine learning also, okay, and in the next sem, image processing also. So we have to know these terms. So data set, as I said, that this is a collection of objects. Very good. So collection of the objects means in this case data, and you have already seen that data may be what? Structured or unstructured, right? So in pattern recognition especially, we are talking about both. We may face some structured data and we may face unstructured data also. Okay, and even unstructured data that we are going to face many times. हम लोगों को अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे क्योंकि हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम्स वी मे डील विद द अनस्ट्रक्चर्ड डाटा राइट सो इफ वी डिस्कस द टेक्सुअल definition that what I have written here that data set is the variable type in which the vector representation of a set of objects is stored together with object class labels, class priors, and other useful annotation of the objects, the measurements, or the data set in the entirety. So, definition में से आपको 3-4 टर्म मिला होगा यहाँ पे, ठीक है? You have got 3-4 terms like object class levels, class priors, other useful annotation of the objects, and measurement of the data set in that entirely. So जब हम एक data set बनाते हैं, when we go for preparing a data set, we have to actually give full information about the data set. जो भी वहाँ पे object रहेगा, जो भी data रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये आपने collect किया है, you have collected it by yourself, right? So you should have knowledge about those data, but what happens if that data set is going to be accessed by someone else than you? Then he should have idea about the class levels, then class priors, then other notations like suppose यहाँ पे ये 3 क्लास है और इस क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सो हमें 3 क्लास मिल गया और 3 क्लासेस का अलग अलग जो फीचर्स रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, आपको ये उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा so that if some other person, some other guy who wants to access that data, who wants to do some research on that data, he should have idea about those class level, those class priors. क्लास पैरस मतलब आपने जो क्लास बनाया है वो किस बेसिस पे बनाया है, ठीक है, उस क्लास का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारे इंफॉर्मेशन आपको उसमें स्टोर करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि दिस इज ए गुड डेटा सेट.
ठीक है, तो द वेक्टर हमने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, तो आई हैव डिफाइंड दिस टर्म मेनी टाइम्स, सो आई नो दैट यू गाइस ऑलरेडी आर familiar with this term. So the vector elements traditionally correspond to the features, but may also refer to pixels values in an image, spectral intensities for a set of wavelengths, amplitudes of a time signal at a given point in time, dissimilarities with a fixed set of other objects like that. तो यहाँ पे जो मैं वेक्टर एलिमेंट्स यूज किया हूँ, जैसे आपने नॉर्मल डाटा सेट लिया तो उसमें वेक्टर एलिमेंट्स मतलब आपका फीचर्स है, राइट, है कि नहीं? तो आपने जो नॉर्मल डाटा सेट यूज किया है उसमें सारे चीज आपका फीचर्स मतलब जो एट्रीब्यूट्स होगा उस एट्रीब्यूट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आपका फीचर्स है, ये सारे रहेगा वेक्टर एलिमेंट्स में। बट जब हम इमेज की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द इमेज, ठीक है, अब इस इमेज के बारे में इन डिटेल्स विल डिस्कस इन इमेज प्रोसेसिंग, particularly in the 10th gem, because image processing is subject is not an easy one, it is a complicated one. You don't think that image processing मतलब हमने क्या किया कि एक इमेज लिया उसको जस्ट एडिट किया, हाँ चीज तो वही है कि आपने एडिट किया, बट जो एडिट करने पे आप जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, ओके, फॉर एडिटिंग दैट इमेज, whatever the algorithms you are using, how the process is overall going on, that things actually we discuss in the image processing class. ठीक है, तो वो आपका 10th सेम पे है, बट वी आर कीपिंग इट एज एन इलेक्टिव, सो इफ यू हैव इंटरेस्ट देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन गो फॉर अनदर सब्जेक्ट आल्सो। तो बट यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब इमेज की बात करते हैं, हम जब इमेज को कंप्यूटर में लाते हैं और कंप्यूटर में उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, तो we'll go through some pixel elements, right? So उस पिक्सल एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पिक्सल। अब जब हम वेक्टर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये इमेज के केस में क्या होगा, उस पिक्सल दैट इज पिक्सल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ओके। देन इंटेंसिटी की बात करते हैं हम। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज डिफाइंड एक्चुअली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। this may be the case of brightness of an image, okay, so अगर हम सपोज ये साउंड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस समय हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो दिस थिंग्स आल्सो part of the vector elements. That's what I mean to say. So don't think that vector elements just stick to the features only. तो अलग अलग डेटा के केस में, जैसे इमेज के केस में हो गया आपका पिक्चर एलिमेंट्स, पिक्सेल्स, साउंड के केस में आपने वेवलेंथ्स कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह अलग अलग डेटा के लिए आपका वेक्टर एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द टेक्सुअल डेफिनेशन ऑफ डेटा सेट, राइट। लेट मी check someone is in lobby, I think. Okay, okay. One more is in. I'll show you one data set. Just wait for a minute. और आप तक जो सारे चीज समझ में आ रहा है ना, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी। Guys, if you want to ask something, then you can. Others, I'll show you one data repository. So vector term clear हो गया आपको, आप सभी को समझ में आ गया? All of you guys got it? What does it mean by vector in our pattern recognition classes? Yes, sir. Yes, sir.
What about the others? I got 2 response. बाकी सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So let me show you one repository what we maximum times use for our means research, implementing our algorithms, checking our algorithm, testing our algorithm. So this repository is very important one. Is my screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, Dekha sir. paisa sabhi? Yes, sir. So see, you have seen that UCI machine learning repository. देखो आप लोग कंफ्यूजन मत होना एक चीज से कि हम यहाँ पीआर में है, मैं मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ, डेटा माइनिंग की बात कर रहा हूँ. एक्चुअली क्या है, ये पूरा डोमेन जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको. ठीक है, दिस डोमेन इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. I think 2 years back, this domain was not in this university. I tried my best to bring this domain. This is the domain of artificial intelligence to our university, Kaziranga University. Okay, because in today's time, actually, in the whatever you are considering the industry case or some you research lab case, so this domain is the one that we have to know. We have to go through. Okay. तो वहाँ पे मैंने जो पेपर्स इंट्रोड्यूस किया, जैसे आप लोगों को पहले मिल चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैंने शायद 6 सेम पे इंट्रोड्यूस किया था. देन आपको इंट्रोड्यूस किया मशीन लर्निंग पेपर, देन अभी DWDM, एंड देन वी हैव pattern recognition as an elective, and then we have image processing. All these papers are interrelated to each other. Machine learning kya hai, is a part of AI. Machine learning, we try to learn some algorithms that is actually part of some statistical domain actually. Okay, and we will use those algorithms to make the computers learn about our data and to decide what decision to take for a new data set, right? So that's why I have introduced this term. Now, UCI machine learning repository, all of you just type in the whatever the searching engine you are using. I'm typing it in the Google. So UCI machine learning repository. टर्म टू मोनो रखिएगा, सभी जन को टर्म याद रखना है. यहाँ से आपको बहुत सारे चीज करना है, ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिकल करना है आप लोगों को. अब मैंने इसको खोला, again someone is in the lobby actually. Let me check once more. I was always late. No problem. So see, UCI machine learning repository. देखा पाइसा सबे? All of you got this? Yes, sir. Okay. So this is a very important repository. आपको repository का मतलब आप लोगों को क्या समझ में आता है? जहाँ पे हम डेटा सेट का कलेक्शन रखते हैं, repository, ठीक है. और यहाँ पे देखो about 557 डेटा सेट्स है, ठीक है. जैसे मैं आप लोगों को ये सब स्टार्ट करूंगा, थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट करूंगा. अभी तो हम फर्स्ट मॉड्यूल में है, आज फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. तो 557 डेटा सेट्स है. यहाँ से एक डेटा सेट पिकअप करो और जो भी आपको मैंने सिखाया है एल्गोरिथम, उसको इम्प्लीमेंट करके देखो. ओके, व्हाट एवर द एल्गोरिथम्स आई विल शो यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट डेटा सेट. सो आपको डेटा सेट कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. पहले आपको ये सारे डेटा सेट जो है इसमें आपको चेक करना है. आफ्टर दैट ओनली वी गो फॉर क्रिएटिंग आवर ओन डेटा सेट. And nowadays it is not a difficult task. All of you know that about that Google form. आप सभी को पता है गूगल फॉर्म क्या है, राइट? तो गूगल फॉर्म के जरिए हम इजीली डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. बट ये जो डेटा सेट है ये कुछ अलग है. जैसे मेरे इमेज प्रोसेसिंग कुछ स्टूडेंट्स था अभी पिछले सेम पे,
Okay, the few students from my last image processing project, they have collected their own data set. So इसी तरह, in that way, I'll guide you for that process. Okay, but you can collect that okay by yourself. आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ दिखाई दे रहा है आइरिस में मैंने यहाँ पे रखा आइरिस। अब मैं इस आइरिस को क्लिक करा। किसी को पता है आइरिस क्या है? एंड एनीबॉडी नो व्हाट इज आइरिस? गूगल मत करो, जो भी पता है वो बताओ मुझे। इफ यू नो देन प्लीज टेल मी। मैंने मशीन लर्निंग क्लास में भी आप लोगों को बताया था व्हाट इज आइरिस। आइरिस डेटा सेट, वन ऑफ द फेमस डेटा सेट। ओके, कोई बात नहीं। यू ऑल गाइस नो रोज, गुलाब, सफेद जाना। गुलाब मतलब क्या है? गुलाब फूल जानते हो आप लोग सभी जन, है ना? इसी तरह आइरिस भी एक क्या है? आप देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हेलो, यू गाइस आर देयर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। सो देखो, मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट few moments before I told you that what is data set। हाँ, तो डाटा सेट मतलब ऐसा नहीं कि आपने डाटा का पॉइंट्स लिया और डाटा सेट बन गया, राइट? बनेगा तो जरूर, बट आपको उस डाटा सेट में क्या लाना पड़ेगा? वो इंफॉर्मेशन अबाउट दोस फीचर्स, सॉरी एट्रीब्यूट्स रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये आइरिस डाटा सेट लिया, देखो यहाँ पे क्या है? डाटा सेट कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टीवेरिएट, number of instances 150, you can take a screenshot, area live, attribute characteristics real, number of attributes 4, data donated बहुत पुराना डाटा सेट है बट बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और इवन मैंने भी अपने रिसर्च में पहले जब मैं स्टार्ट कर रहा था कुछ वर्क, तो मैं भी इस डाटा सेट को लेके मेरा मीन्स रिसर्च का कुछ प्रपोजल चेक किया था। ओके, so this data set, I love this data set. I know that you guys also love this data set when you start working in this field, right? So associated tasks classification है, missing values no, number of web hits, देखो कितना ज़्यादा web hits हो रहा है, कितने लोग इस डाटा सेट को लेके अपना काम करते हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल चेक करते हैं, राइट? आप इसको कभी कभी हम बोलते हैं फिशर आइरिस डाटा सेट ऑल्सो, ठीक है? फिशर आइरिस डाटा सेट भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दिस डाटा सेट एक्चुअली बीइंग क्रिएटेड बाय RAFISHER, फिशर, ठीक है? तो इसलिए इसको हम फिशर आइरिस डाटा सेट भी बोलते हैं। अब इस डाटा सेट के बारे में हम लेट्स ट्राई टू नो अबाउट दिस डाटा सेट। So this is perhaps the best known database to be found in the pattern recognition literature. Fisher's paper is classic in the field and is referenced frequently to this, and the dataset contains 3 classes of 50 instances. तो इस dataset के बारे में देखो, मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, आप you are going to create your dataset in future, तो आपको कैसे इस dataset को ऑर्गेनाइज करना है। देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसमें 3 क्लास है, वी हैव 3 क्लासेस, और हर एक क्लास में 50 इंस्टेंसेस हैं। अब ये 50 इंस्टेंस क्या है? आस्क मी, हैव यू गॉट दिस? व्हाट इज 50 इंस्टेंस? No, sir. No, sir. ठीक है, देखो तो 50 इंस्टेंस का मतलब है सपोज एक क्लास का कितने बार उस डेटा सेट में अपीयर हो रहा है, ठीक है? ए पार्टिकुलर क्लास, how many times it appears in the data set as a whole, that is known as instances, ठीक है? हिंदी में बोलो तो ये क्या है? कितने बार उस डेटा सेट में आ रहा है, किमान बार हे डेटा क्लास 2 रिपीट হৈছে हे डेटा सेट 2, হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ? হেতুকে আমি ইনষ্টেন্স বুলি কওঁ। যেনেকৈ জয়টা সাপোজ এই মোৰ গোটেই পেটাৰ্ণ ৰিকগনিশ্যন লেকচাৰটো যেতিয়া শেষ হ'ব, ফ্ৰম দ্য ভেৰি বিগিনিং টু দ্য এণ্ড অফ দিছ হোল ছাবজেক্ট, she has attended around, say, I think 40 lectures. So Zeta's instances will be how many? 40. Similarly, suppose Kaishabi attended, say, 41. Then her instances will be, number of instances
will be 41. Ankit attended suppose 42. So 42 will be the instances for Ankit. Now you tell me whether this term instance is clear to you or not. Yes, sir. Got it? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ इस आइरिस डेटा सेट में 3 क्लास है। 3 क्लास है मतलब जैसे कि आपने गुलाब फूल के बारे में तो जानते हैं, एवरीबॉडी नोस अबाउट द रोज, राइट? आई नो दिस, सो आई नो दैट यू आल्सो नो। जाना ना जाना, यू गाइस नो? Yes, sir. नो, यू डोंट नो? Yes, sir, we know. ओके, ठीक है सर। सो इफ यू नो देन তোমালোকেও জানা যে গোলাপৰ বহুত ডিফারেন্ট টাইপ থাকে। You guys also know that there are different types of गुलाब, ठीक है? तो जैसे मैंने एक बार मैं शिलोंग गया था तो वहाँ पे देखा था, वहाँ का जो गुलाब है वो बंच में लगते हैं। As per the climate there, their roses appear to be in bunch. কিন্তু আমাৰ অসমত, because of the humidity, so you will see that their structure is different, right? So in suppose some other rest part of the India, as per the climate concern, you will see different types of roses, and this is applicable to the whole different other countries also. So हमें ये बोलना तो सही नहीं होगा कि गुलाब का सिर्फ एक ही क्लास है, राइट हो रहा? या तो आप कलर को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो कोई रेड कलर का है, कोई सपोज व्हाइट कलर का है, इवन यू विल सी सम ब्लैक कलर रोज ऑल्सो। तो इसी तरह से ये हैं, आइरिस का भी अपना क्लासेस है, और वो कितना है? 3 क्लासेस, ठीक है? और वो क्लासेस ये है, यहाँ पे देखो आप, आइरिस सिटोसा, आइरिस वर्सिकलर, आइरिस वर्जिनिका। एकदम रट लो ये चीज। हाँ, उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ जो इस फील्ड में रहना चाहते, इस फील्ड में काम करना चाहते। दूसरों, if someone wants to do some research in this field, then to you guys, in my PhD, in my research, no one show me that what is this, because in my post graduation the faculties stick to their subjects only. They don't show me that how actually that was not their problem, but we guys also miss something, that's why. So अगर इस लाइन में काम करना है तो ये सारे चीज अच्छे से देख के जाओ आप लोग। तो आइरिस का जो है, आइरिस सिटोसा है, आइरिस वर्सिकलर है, आइरिस वर्जिनिका है, ठीक है? तो ये 3 क्लास हैं। अब हमारा काम क्या रहता है, जब हम इस डेटा सेट को एनालाइज करते हैं, व्हेन वी गो फॉर एनालाइजिंग द डेटा सेट, हमें इन 3 क्लास को सेपरेट करना है आउट ऑफ द होल डेटा सेट, क्योंकि डेटा सेट में तो सारे चीज का मिक्सर रहेगा, राइट और रॉन्ग? तो आप क्या चेक करोगे? क्या आपने एक सपोज क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम प्रपोज किया, और वो एल्गोरिथम क्या सही ढंग से एक्यूरेटली इन सारे क्लासेस को, 3 क्लासेस को 3 अलग अलग टाइप से आपको प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं? If this is the case of classification, your task means your proposed algorithm, whether it is able to show you in 3 different classes the whole data set elements, right? So I hope now this iris data set, this thing is clear to you, right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, पूरा बुझी पाइसा? So you got it? So यहाँ पे क्या होगा, this is a public data set। हाँ, data set का भी याद रखना, data set will be 2 types, 2টা टाइपर থাকিব, 2 प्रकार का होता है data set। एक प्राइवेट, जो आप अपने के लिए, अपना जो काम है, अपना जो टास्क है, उसके लिए आपने खुद कलेक्ट किया है, ठीक है? यू हैव गेटेड द प्राइवेट डाटा सेट बाय योरसेल्फ ओनली फॉर स्पेसिफिकली फॉर योर टास्क। यू डोंट वांट टू मेक इट public, but these are public data set to help researchers like you and me to check whether our algorithms performing accurately or not, ठीक है? तो ये पब्लिक डाटा सेट है। बट जब आप रिसर्च में काम करोगे, रिसर्च पेपर लिखोगे, तो आपको ये चीज साइट करना पड़ेगा। हाँ, ये वाला रिसर्च पेपर है, ठीक है, ये वाला डाटा सेट है जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? ये तो मैं अपने जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स है, ये मैं अच्छे से आप लोगों को बता दूंगा कैसे करना है। अभी तक के आपको डाटा सेट का नॉलेज देना था, तो आई थिंक आप लोग ने ये चीज देख लिया कि क्या है डाटा सेट, राइट? अब डाउनलोड का ऑप्शन है, देखो, यू कैन डाउनलोड द होल डाटा फोल्डर
ओके, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। और उसके बाद डेटा सेट डिस्क्रिप्शन है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जब हमने मैं क्लिक किया तो यू विल सी दैट दिस इज आइरिस डेटा सेट। आपको येस क्लिक करना होगा और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी शो यू। মই কোনখন পেপাৰত এইটো ডেটা সেট ইউজ কৰিছিলোঁ, ইন হুইচ ৰিচাৰ্চ পেপাৰ আই হেভ ইউজ দিছ ডেটা সেট, আই উইল শ্ব ইউ। I hope up to now you got what is data set, and this is Google Scholar. You guys, my request is that if you tend to move towards a research-based project, then create a profile of it. Whenever your publication will be there, then this will be reflected here. Also, we have different you guys all have Facebook. सबों सो Facebook আছে, सभी के पास Facebook प्रोफाइल है कि नहीं है? Yes, sir. है। तो फिर अभी एक काम करना, थोड़ा रिसर्च का भी कुछ बना लेना। रिसर्च गेट मेन चीज, रिसर्च गेट में अपना प्रोफाइल खोलना। और अंकित और बहुत लोगों ने अभी तक खोल भी लिया है ऑलरेडी। ठीक है, आप लोग भी ऐसे खोल लेना। ठीक है, एंड लिंक्डइन के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो सबको पता है। तो लेट दिस इज गूगल स्कॉलर। ओके, दिस विल रिफ्लेक्ट दैट द इम्पैक्ट ऑफ योर रिसर्च। ठीक है, cited by means how many times your research work has been used by the other researchers throughout the globe. So considering this one, आप लोगों ने वेबिनार मिस कर दिया, आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है ना? इसलिए मैंने फोर्स नहीं किया था। हाँ, हेलो, कुछ तो रेस्पॉन्स दो। नो सर। सर नहीं लग रहा है। Wait, I just want to show you how to do it. That's why I try to download it. बहुत slow है तो। Okay, you do one thing, all of you. So right, ठीक है। So in this paper, ठीक है, this is one of my initial work. Okay. एक सेकेंड, आप देखो यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है? All of you guys, is this visible? Yes, to sir. you? Yes, sure. This experiment I have conducted on the iris dataset. बहुत पहले की बात है ये, ठीक है, बहुत भी नहीं, फिर भी आई थिंक 5 years बैक। ओके, सो मैंने जब अपना रिसर्च स्टार्ट किया था शायद, तभी मैं पहले तो कुछ काम किया था, उसके बाद इसमें आया था, तो इसमें भी काम किया था, आइरिस डेटासेट। सो सी, आइरिस डेटासेट इज chosen for the purpose of our experiment. This iris flower dataset और फिशर्स आइरिस डेटासेट। क्यों फिशर्स आइरिस बोल रहा हूँ? क्योंकि फिशर्स ने, आर एफ फिशर्स ने इसको कलेक्ट किया था। जैसे आपने सपोज कल को एक डेटासेट बनाया, तो जैसे अंकित डेटासेट ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो एक्चुअली लास्ट नेम मोहरी dataset like that. Okay, so sometimes also known as Anderson iris dataset is a multivariate dataset introduced by R. Fisher. ठीक है, यहाँ पे 50 सैंपल्स हैं। अब जब इसको हम प्लॉट करेंगे, कैसे करना है, इफ टाइम परमिट्स आई विल शो इट टू यू, बट नाउ यहाँ इस फिगर में देखो, ये दिख रहा है सिपेल लेंथ, सिपेल विड्थ एंड पेटल लेंथ। और यहाँ पे ये जो जितना भी डेटा सेट है उसको हमने प्लॉट किया है, और इस प्लॉट को बोलते हैं 3D प्लॉट, राइट। ये जो दिख रहा है छोटा छोटा छोटा, दिस पॉइंट्स आर एक्चुअली द डेटा पॉइंट्स। एंड डेटा पॉइंट्स क्या है? यहाँ पे आपका आइरिस डेटा का 3 क्लासेस में से जो है वो है।
ठीक है। नाउ अब ये बाकी सब चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आपको अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं हूँ। फिर भी दिख रहा है यहाँ पे ये 4 क्लस्टर बनाया। आई हैव फ्रॉम 4 क्लस्टर्स, ठीक है। सो ये पेपर में बाद में whenever I will get the time after showing you what is clustering, what is classification, I will show you these things in details, ठीक है। कैसे करना है ये सब चीज़ भी मैं दिखा दूंगा आपको। And this paper is very important in the case that not I am saying that because already many researchers use this paper, because whatever the work we have introduced, I have introduced here, is very important because this is about fuzzy clustering algorithm and hard clustering algorithm. अभी आपको क्लस्टरिंग भी मैंने पढ़ाया नहीं है तो आपको इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। आई विल डिस्कस दिस थिंग्स इन डिटेल। तो ये डाटा सेट जो मैंने अभी इस रिसर्च पेपर के लिए यूज़ किया था, मैंने UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी से लिया था। तो यहाँ पे मैंने बराबर उसको साइट भी किया था। कैसे साइट किया था? देखो 9 and 11 यहाँ पे दिख रहा है, 9 and 11 सबको। आप वहाँ नीचे जाओगे तो एक्सिस मिलेगा आपको रिफरेंस, ठीक है। रिफरेंस में दिख रहा है ये है आर्काइव ICS UCI एजुकेशन M डाटा सेट आईडी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डाटा सेट आ जाएगा, ठीक है। बस मुझे इतना बताना था कि डाटा सेट क्या है। आई थिंक अप टू नाउ I succeed to show you that what is data set and you have got all the terms related to it. You tell me please. Then I will move to the next topic. बताओ सबको समझ में आ गया सारे चीज डाटा सेट से रिलेटेड, कहाँ से डाउनलोड करना है, UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, उसके बाद हमको कैसे साइट करना है, ये सारे चीज सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, तो आप sir. लोगों के लिए आज ये काम है कि आप लोग भी गूगल में जहाँ पर जो भी सर्चिंग इंजन आप यूज करें उसमें ये खोल के रखना और एक दो डाटा सेट डाउनलोड करके रखना और वो डाटा सेट नोट डाउन करो। आइरिस डाटा सेट एंड वाइन डाटा सेट, WINE, वाइन एंड आइरिस, IRIS, ठीक है। ऑल ऑफ you will do that, and when you get the recorded lecture here you will tell me what is the means description of the wine data set. iris data set तो सबको पता चल गया, ठीक है। Now let's come back to our have we been left with some time, 5 minutes more? क्या 5 मिनट और मैं Sir, ले we have. सकता हूँ? Oh, okay, sir. हाँ जितना क्या क्लास है क्या अभी? हाँ सर, 11:30 से सजल सर का क्लास है। ओके नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। तो फिर तो इस पूरा लेक्चर में मैं एक ही चीज में कंसंट्रेट किया, किसमें? डाटा सेट, राइट? Yeah, in this whole lecture I have concentrated only one thing, data set, because this is the actually initial step for the whole pattern recognition process, right? So data recognition, again I am giving the definition here. A data set is a collection of data. A data set corresponds to the contents of a single database table or a single statistical data matrix where every column of the table represents a particular variable and each row corresponds to a given member of the data set. And this is very important. See, every column means what? Every column of the table represents a particular variable, और variable in this case आपका फीचर्स भी हो सकता है, आपका एट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था आइरिस के केस में 3 था, 3 आपका क्या था? क्लासेस था। और रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरी रो कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए गिवन मेंबर ऑफ द डाटा सेट। ऑफ कोर्स रो में तो सारे टुपल्स आ जाते हैं, मतलब सारे कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है। और इस एवरी रो इज नोन एज टुपल्स, यू गाइस नो दैट। सो एवरी रो कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंफॉर्मेशन अबाउट every member of that data set. So this is the textual definition, right? Then I think these things I will discuss in the next class. So today you have got my question. First question, you will write the description of wine dataset. Why wine dataset? We try to do some practicals on that later on. And then next question is that how will you define dataset? That's very simple. Okay. So with that,
First, let me take the attendance. Okay, thank you. I have no question to ask, so we'll meet in the next lecture. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.